رمضان بچوں کا رمضان، ایکٹیویٹی ہے سوالات بھی، بچوں کے پیارے جوابات بھی، سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے اس میں، رمضان کی کیا شان، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے شہر سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، ہے شہر سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مکہ مکہ، کیا خوب مکہ مکہ، سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام آ گیا ہے جس پروگرام کا نام ہے بچوں کا رمضان۔ جی ہاں، پروگرام دیکھ رہے ہیں بچوں کا رمضان۔ اس پروگرام کی خاص باتیں ہیں اور ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہوتی ہے ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے۔ کچھ بچے جو ہیں ماشاءاللہ اس میں حصہ لیتے ہیں ایکٹیویٹیز وغیرہ میں، کچھ بچے جو ہے اپنا بیان سناتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، یعنی کہ شروع سے لے کر آخر تک ایک دینی ماحول بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو شروع سے لے کر آخر تک آپ نے ہمارا پروگرام دیکھنا ہے اور اس کی برکتیں حاصل کرنی ہے۔ ماشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے درمیان جو ہے وہ جلوہ فرما ہے، اور بعض بچے اس سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں اور بعض بچے جو ہے وہ صحیح انداز سے نہیں چل رہے۔ اب نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں تو اس کو کہیں گے اچھے انداز سے گزار رہے ہیں۔ دیکھیں رمضان شریف تو گزر رہا ہے، گزر جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر جب رمضان شریف گزرتا ہے تو اس کے بعد آتی عید۔ تو اللہ تعالیٰ رمضان کی جس نے عبادت کی عید ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کری ان کے لیے عید کا تحفہ ہے۔ لیکن اگر وہ ایسے بچے، شاپنگ تو ہو رہی ہے، نئے نئے سوٹ بھی بن رہے ہوں گے، بعض کے 2 3 سوٹ بن رہے ہیں، نئے نئے جوتے لے رہے ہیں، اور گھڑی بھی نہیں ہونی چاہیے، کافی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، عیدی کی بھی تیاری چل رہی ہے۔ لیکن پیارے بچوں، عید تو اس کی ہے جو کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اب کوئی بچہ اسی طرف آ ہی نہیں رہا ہے۔ اگر کوئی بچہ اس طرف نہیں آ رہا کہ وہ عبادت نہیں کر رہا ہے، جیسے کہ پہلے دن چل رہے تھے، ابھی بھی رمضان میں ایسے دن چل رہے ہیں، تو یہ اچھی بات کوئی ہے۔ ہاں، جب سحری میں کھانا کھانے کا وقت آئے، افطار میں کھانا کھانے کا وقت آئے تو آ گئے۔ باقی کہاں ہے بھائی؟ نماز میں کہاں ہیں آپ؟ جائے نماز کہاں ہے آپ کی؟ تسبیح کہاں ہے؟ اور ہر بچہ کوشش کرے اپنی جیب میں تسبیح رکھے۔ کیا رکھے؟ تسبیح، جیب میں تسبیح۔ ابھی ہے بچوں کی جیب میں، جن کی جیب میں تسبیح ہے تو اچھی بات ہے۔ اچھا تسبیح ہوگی تو پڑھیں گے نا۔ جب آپ گھر سے باہر جا رہے ہوتے ہیں تو امی سے کیا لیتے ہیں؟ ایسے تسبیح لیتے ہو؟ تسبیح کیا لیتے ہیں؟ ایسے ضرورت پڑے گی تو جو چیز کھانے کو نظر آئے گی کھا لوں گا، اور اگر پیسے نہیں ہوں گے تو کھانے کا دل چاہ رہا ہوگا تو پیسے نہیں ہے تو وہ چیز نہیں کھا سکتے۔ یا کوئی چیز خرید لیں گے، چلیں کھا نہیں رہے تو کوئی چیز خرید لیں گے، تو پیسے ہونا جیب میں لازمی ضروری ہیں کہ پیسے ہوں گے تو ماحول بنتا رہے گا۔ تو اسی طرح پیارے بچوں، جو چیز جیب میں ہوتی ہے پھر وہ استعمال بھی ہوتی ہے۔
اگر تسبیح ہوگی تو پڑھیں گے بھی. امی تسبیح دے دیں, کیوں, میں جا رہا ہوں مدنی چینل پر, میں جا رہا ہوں اسکول جا رہا ہوں, مدرسے آ رہا ہوں, تو پورے رستے جو ہے درود پاک پڑھ لوں گا. تو ہر بچہ رمضان المبارک میں اگر قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو قرآن پڑھیں, اگر آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے. تسبیح تو پڑھیں, 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں, 1000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں. تو جب آپ یہ چیزیں پڑھتے رہیں گے تو آپ کے دل میں بھی نور پیدا ہوگا, چہرے میں بھی نور پیدا ہوگا, آپ اچھے بچے کہلائیں گے. اب کچھ ہے ہی نہیں, بس جس طرح پہلے چل رہا تھا رمضان میں بھی اسی طرح چل رہا ہے, تو مزہ نہیں آئے گا. نمازیں پڑھیں, زیادہ سے زیادہ پڑھیں, تہجد بھی پڑھیں, 5 نمازیں پڑھیں, ٹھیک ہے. جو بڑے بچے ہیں مسجد جا کے پڑھیں, اور جو چھوٹے بچے ہیں ٹھیک ہے وہ گھر میں ہی پڑھیں, لیکن پڑھیں تو نظر آئے کہ رمضان آ گیا ہے. بعض بچوں کو اس چیز میں مزہ آتا ہے, لائٹنگ وائٹنگ لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے بھائی لائٹنگ بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی ہے, ٹھیک ہے جی. تو آپ نے اچھے انداز سے جو ہے رمضان المبارک کو گزارنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آئیے اپنے پروگرام کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں پہلا مرحلہ, پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے کلام. بچوں کا رمضان, رمضان بچوں کا رمضان. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سن دیں گے محشر میں صرف وہی رسائی ہے, گر ان کے رسائی ہے, لو جو بنائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کے رسائی ہے, لو جو بنائی ہے. مچلا کہ رحمت نے امید بندائی ہے, مچلا کہ رحمت نے امید بندائی ہے. آباد تیری مجرم, کیا بات تیری مجرم, کیا بات بنائی ہے. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو, سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. بے بسوں کے آقا, اے بے بسوں کے آقا, اب تیری دعائی ہے. مطلب میں شک کیا تھا, واللہ رضا واللہ, مطلب میں شک کیا تھا, واللہ رضا واللہ, صرف ان کی رسائی ہے, صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے, لو جب دو بنائی ہے. تو سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے کیا بات ہے رمضان کی. بچوں کا رمضان, رمضان بچوں کا رمضان. اور اس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں 2 بچے جو کہ اس پروگرام کو لیڈ کرتے ہیں. ایک کرتے ہیں ٹیم اے کو اور ایک کرتے ہیں ٹیم بی کو. اور دائیں جانب ہمارے عزیر شاہ صاحب.
माशाल्लाह। उज़ैर भाई क्या कहेंगे? जी आज हमारे टीम ए पूरी पक्की तैयार है और माशाल्लाह से अच्छी तैयार करवाई है। माशाल्लाह। आप क्या कहेंगे ज़ाज़ान भाई? हमारी टीम की भी बहुत अच्छी तैयारी है। हमारी टीम से अब्दुल्ला भाई आएंगे। अब्दुल्ला भाई आएंगे या आ गए हैं? आ गए। आ गए हैं, ठीक है। टॉपिक क्या है आज, किस चीज़ के बारे में बताएंगे? और रमज़ान में क्या क्या फजीलत हासिल होती है उन सब। रमज़ान शरीफ के फ़ज़ाइल बताएंगे। चलें, एक फ़जीलत आप बताएं और एक फ़जीलत आप बताएं, ठीक है मेरे बच्चों? शुरू। रमज़ान शरीफ के लिए जन्नत सजाई जाती है। रमज़ान शरीफ में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रमज़ान शरीफ में खाने पीने का आखिरत में हिसाब नहीं होगा। रमज़ान शरीफ में सहरी और इफ्तारी के वक्त दुआ कबूल होती है। महीनों में सिर्फ रमज़ान शरीफ का नाम कुरान पाक में आया है। रमज़ान शरीफ रोज़ादार की शफाअत करेगा। रमज़ान शरीफ में अल्लाह पाक रोज़ाना 10 लाख लोगों की बख्शिश फरमाता है और इफ्तार के वक्त 60,000 लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो रमज़ान शरीफ बरकतों, नेमतों, रहमतों वाला महीना है। तो रमज़ान शरीफ की बरकतों के क्या कहने, बस रमज़ान शरीफ के फ़ज़ाइल पढ़ते रहें। अमीरुल सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने रमज़ान शरीफ की फ़ज़ाइल पर एक किताब लिखी है। किसी बच्चे को उस किताब का नाम मालूम है? जी, रमज़ान शरीफ के फ़ज़ाइल। जी, नीचे वाले बच्चे। फैज़ान रमज़ान। फैज़ान रमज़ान, क्या नाम रखा है? फैज़ान रमज़ान। फैज़ान। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो रमज़ान शरीफ में हम लोग बार बार बोल रहे होते हैं, जैसे कि इस महीने का नाम रमज़ान, क्या कहेंगे? रमज़ान। रमज़ान। क्या कहेंगे? रमज़ान। रा पर भी ज़बर, मीम पर भी ज़बर। सब बच्चे मिलकर बोलें रमज़ान। अच्छा जी। अब जो वक्त होता है, जब रोज़ा खुलने का वक्त होता है, फिर क्या होती है, किस चीज़ की तैयारी होती है? इफ्तार। अफ्तार। इफ्तार क्या कहेंगे? इफ्तार। इफ्तार, ठीक है। इफ्तारी कर लीजिए, अफ्तारी नहीं, ठीक है। क्या कहेंगे? इफ्तार। इफ्तार कर लीजिए। और महीना कौन सा चल रहा है? रमज़ान। जब ये बार बार अभी से बचपन में आप लोगों की ज़बान पर ये अल्फाज आ जाएंगे, इफ्तार, सहारी, रमज़ान, तो इंशाअल्लाह ताला ये आप लोगों को फिर मज़ा भी देगा। और हमारा जो प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। आज कौन सा दिन है? जुम्आ। क्या बोलेंगे? जुम्आ। जुम्मा नहीं, जुम्आ। बस ज़बर देर पेश हैं, उनका आपने ध्यान रखना है, ये अदायगी हो जाएगी अच्छी माशाअल्लाह। अगर बचपन से इसी अंदाज से बोलते रहेंगे तो आगे चल के भी अच्छी गुफ्तगू करेंगे। अब एक और सेगमेंट शामिल करेंगे जो कि एक पैकेज है। बच्चों का रमज़ान, रमज़ान बच्चों का रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंकल कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आपका नाम? मोहम्मद यूनुस अत्तारी। कुछ सवालात करने आपसे, आपकी इजाज़त है? जवाब देंगे? इंशाअल्लाह। तो सवाल ये कि रमज़ान शरीफ में मस्जिदों में नमाजियों का रश हो जाता है, इसकी वजह क्या है? थोड़ा सा खौफ खुदा बढ़ जाता है और सवाब की नीयत होती है कि ज़्यादा सवाब मिलता है रमज़ान में। रमज़ान में मस्जिदों में रश इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि रमज़ान में नमाजियों रोज़ेदारों रोज़े की वजह से जो है ना रश बढ़ जाता है। रोज़े रखते हैं तो नमाज ही पढ़ने आ जाते हैं लोग। बिल्कुल। इसकी वजह यह है कि हम सब रोज़े रखते हैं, अल्लाह को याद भी कर सकते हैं। नमाज दरअसल ये है, जब लोग रोज़ा लगते हैं तो नमाज़ों की आदत बन जाती है। नफ्स अम्मारा पर जो है एक भारी ज़र पड़ती है और शैतान कैद होता है, जिसकी वजह से एक सबब ये बनता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल मसाजिद आबाद हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल दावत इस्लामी के मदनी माहौल से मुंसलिक रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल नफ्स और शैतान से लड़ने और इनसे मुकाबला करने का इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ज़हन बनेगा। नमाजियों का रश इस वजह से बढ़ जाता है क्योंकि शैतान इस महीने में कैद हो जाता है और लोग गुनाहों से बचते हैं, इस वजह से मस्जिद में रश ज़्यादा हो जाता है। रमज़ान शरीफ में नमाज़ों का रश इसलिए वजह से लग जाता है क्योंकि रमज़ान एक तो बरकतों का महीना है, ठीक है ना, और दूसरा हर बंदा चाहता है कि मैं अल्लाह ताला से जितनी हो सके रहमतें लूट लूँ। ऐसा ही है, तो ये वजह है और कुछ नहीं। सवाल ये कि मस्जिदों में रमज़ान में रश बढ़ जाता है ना नमाजियों का, तो उसकी वजह क्या है? वो शैतान कैद होते हैं, शैतान कैद हो जाता है। शैतान कैद हो जाता है और मैं उकसा नहीं सकता। नमाज़ पढ़ने की आदत कैसे बना? नमाज़ पढ़ने के लिए अगर दीन की तरफ होगा तो नमाज की तरफ भी रुख हो जाएगा लाजमी। नमाज़ पढ़ने की आदत कैसे बनाए? नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आना पड़ेगा। पढ़ते रहेंगे तो आदत भी हो जाएगी। बिल्कुल पढ़ते रहेंगे, आदत बन जाएगी। नमाज के फ़ज़ाइल पर गौर किया जाए और ना पढ़ने के अज़ाबात पर गौर किया जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह ने चाहा तो ज़हन बन जाएगा। मस्जिदों में जाते हैं, नमाज़ें पढ़ते रहें तो नमाज की आदत हो जाती है इंशाअल्लाह। नमाज की आदत बन जाएगी इंशाअल्लाह करीम। नमाज़ें पढ़ते रहेंगे, आदत बन जाएगी। नमाज बार बार पढ़ने से नमाज पढ़ने की आदत बनती है। घर से माहौल बनता है, घर से माँ बाप
माहौल बनाएंगे तो बनेगा, वरना बच्चा माहौल जैसे माहौल मिलेगा वैसे ही आदत पड़ेगी। नमाज़ पढ़ने की आदत बंदा इस तरीके से बनाए कि देखें हम दुनिया से मांगते हैं कि यार ये दे दो, वो एक दिन देगा, दूसरे दिन देगा, तीसरे दिन उकता जाएगा। लेकिन जो रब कायनात है वो तो फरमाता है कि मुझसे मांगो मैं अता करूँगा। ऐसा ही है। ठीक है ना सर? तो नमाज अल्लाह ताला से मुलाकात का ज़रिया है, और जो पढ़ेगा मोमिन की मेराज है। मोमिन की मेराज है, और हुजूर पाक की आंखों की ठंडक है। ठीक है सर? और जो पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह वो हुजूर का दीदार भी नसीब फरमाएगा, ठीक है ना, और कामयाबी की तरफ जाएगा। चलें जी, एक और सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है आज हमारी तरफ से। बच्चों का रमजान, रमजान बच्चों का रमजान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आज हमारी तरफ से, आपकी तरफ से क्या है? जी, आज हम आपको कुरान पाक के बारे में बताएंगे। ठीक है जी। बच्चों, कुरान पाक अल्लाह पाक का कलाम है। उसने ये अपने बंदों की रहनुमाई के लिए नाजिल फरमाया है। इस किताब में सारे इल्म मौजूद हैं। इस जैसी कोई दूसरी किताब नहीं है, और ना ही सारी मखलूक मिलकर ऐसी दूसरी किताब बना सकती है। अल्लाह करीम ने ये किताब अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। इसकी हिफाजत का ज़िम्मेदार खुद अल्लाह पाक है। पहले की आसमानी किताबों को ज़माने के बुरे लोगों ने बदल डाला, अब वो असली हालत में नहीं मिलती, मगर कुरान पाक जैसा उतरा था आज तक वैसा ही है और हमेशा वैसा ही रहेगा। इसमें एक हर्फ का भी फ़र्क नहीं आ सकता। ये ऐसी अजीम किताब है कि इसे देखना, पढ़ना, सुनना सब इबादत है, और इस पर अमल करना दोनों जहान की सआदत है। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। हमें सही कुरान पाक पढ़ना आना चाहिए। जो कुरान पाक को गलत तरीके से पढ़ते हैं, हदीस पाक में ऐसे लोगों को बुरा कहा गया है। बच्चों, हमें रोज़ाना कुछ न कुछ तिलावत ज़रूर करनी चाहिए, और रोज़ाना 2 या 3 आयतों का तर्जुमा और तफसीर पढ़नी या अपने अम्मी अब्बू से सुननी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमारा रब्बे करीम हमसे क्या फरमा रहा है। बच्चों, कुरान पाक को पीट करना भी बेअदबी है। कुरान करीम को उठाते और रखते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। बच्चों, आपको मालूम है हम कुरान पाक पर किस तरह अमल कर सकते हैं? इसके लिए हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नतों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी कुरान शरीफ की तफसीर है। बच्चों, जब हम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपना लेंगे तो कुरान मजीद पर अमल करने वाले बन जाएंगे। जी, तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज आपने कुरान पाक के मुतालिक बातें सुनी। तो माशाल्लाह जब से ही हमारा प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ है कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीखने को मिल ही रही हैं। रमज़ान शरीफ के फ़ज़ाइल, फिर उसके बाद आज बस सेगमेंट के एक नाम बनाए हुए ताकि बच्चों की दिलचस्पी रहे। तो इसी तरह ये प्रोग्राम देखते रहिए और इसकी बरकतें हासिल कीजिए। अब एक और सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है बच्चों से सवालात। बच्चों का रमजान, रमजान बच्चों का रमजान। चलें जी, कुछ बातें हम आपसे मालूम करेंगे। अब देखते हैं बच्चे क्या इसका जवाब देते हैं। इफ्तारी के वक्त दुआ कबूल होती है, ठीक है? जैसे आपने इफ्तार किया, अब यह है कि दुआ मांगें, तो उस वक्त क्या क्या दुआ मांगनी चाहिए या आप क्या क्या दुआ मांगते हैं? चलें जी, कौन बच्चा बताएगा? माइक दें। हमें क्या क्या दुआ करनी चाहिए? एक एक दुआ सोच के रखें जी। ए अल्लाह पाक हमें हाफिज़ कुरान बना। जी, अल्लाह पाक हमें हाफिज़ कुरान बना, आमीन। माइक दें। वालिदैन के लिए दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह पाक वालिदैन को सलामत रख। सलामत रख, ठीक है जी। माइक माइक माइक। मदीने मक्के की दुआ मांगनी चाहिए। क्या वो मांग के बताएं? या अल्लाह हमें मक्का मदीने की ज़ियारत नसीब फरमा। आमीन। और अल्लाह ताला हमारे घर साहब को सलामत रखना। कारी साहब को सलामत रखना। जी हाँ, कारी साहब के लिए भी दुआ करनी चाहिए। और बस। या अल्लाह पाक रमज़ानुल मुबारक के सदक़े हमें और हमारे वालिदैन को उम्रा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन आमीन। और माशाअल्लाह। और क्या दुआ करती हैं भाई? या अल्लाह पाक हमें रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता। आमीन आमीन, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। और अल्लाह पाक हमें वालिदैन का फर्मा बरदार बना दे। फर्मा बरदार बना दे, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और कोई बच्चा? दुआ तो सब मांगते हैं ना, दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो क्या मांगते हैं? आ रहे दिन में
اللہ تعالیٰ ہمیں مکہ مدینہ دکھا دے. آمین. مائک دے مائک. یا اللہ ہمارے والدین کو مکہ مدینہ بلا. والدین کو بلا، ہمیں بھی بلا لے. ٹھیک ہے، سب ساتھ جائیں. وہ شعر ہے نا، سب اہل خانہ ساتھ ہوں اور کاش چل پڑے سوئے مدینہ قافلہ یا رب مصطفیٰ. تو اللہ پاک ہمیں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے. جس طرح ہم یہاں رمضان شریف گزار رہے ہیں، کاش آئندہ سال اس سال بھی اسباب ہو جائیں، ہم سب مکہ مدینہ حاضر ہو جائیں. مکے کی سحریاں ہوں، مدینہ کی افطاریاں ہوں، گنبد خضرا کو دیکھ کر افطار کریں، سحری بن کریں تو مدینہ پاک میں ہوں. بار بار آنا جانا یہ مقدس سفر ہمارے مقدر میں ہو. تو اللہ پاک سے اچھی اچھی دعائیں کرنی چاہیے. آج آپ میں سے، ٹھیک ہے، کسی بچے نے کوئی اچھا کام کیا ہو تو وہ بتائیں، اور اس نیت سے بتائیں کہ تاکہ دوسرے بچوں کو بھی ترغیب ملے. کسی بچے نے کوئی اچھا کام کیا ہو تو بتائیں. کسی بچے نے نہیں کیا کوئی اچھا کام، کیا لڑائی جھگڑا کر آئے؟ جی. آج میں نے فجر میں قرآن پاک پڑھا پورا ایک پارہ. ایک پارہ، زبردست، بہت اچھی بات بتائیں، ماشاء اللہ. آج میں نے فجر کی نماز پڑھی. فجر کی نماز پڑھی، زبردست زبردست. اور بس. آج میں سحری میں جلدی اٹھ گیا. کیا کیا پھر اٹھ کے؟ لیٹے رہے پھر اٹھ گئے تھے پورے؟ اٹھ گئے. پھر کیا کیا؟ سحری کی. اچھا، جلدی اٹھ گئے تھے، چلیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. بعض بچے نہیں اٹھ رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں. جی مائی. آج میں نے جمعہ کی نماز پڑھی. آج جمعہ کی نماز پڑھی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اور مائک. آج میں نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھا. پڑھ لیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور میرے بچوں، اچھے اچھے کام تو کر رہے ہیں آپ لوگ. آج میں نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے اور والدین کے لیے دعا مانگی. کیا مانگی؟ یا اللہ پاک ہمیں اور اپنی پوری فیملی کو مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرما. آمین آمین آمین، ماشاء اللہ. اور دعائیں مانگی. یا اللہ ہمیں یا اللہ پاک ہمیں نہیں آ رہا کوئی اچھا کام کیا ہو. آج کوئی مدنی چینل پر آ گئے آپ، یہ کام کیا ہے گاڑی میں بیٹھ کر، اور بہت سارے اچھے کام اگر نہیں کیے تو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کرنے چاہیے. کسی کی مدد کر دیں، گھر میں ہاتھ بٹائیں، کپڑے جو ہے صاف ستھرے رکھیں. تو ظاہر بات ہے کم گندے ہوں گے، کم خراب ہوں گے تو امی کو دھونے میں کم پریشانی ہوگی. تو اچھے اچھے کام کرنے کی عادت بنائیں، اچھے اچھے کام کرنے کی عادت بنائیں. زور سے تو بولیں، عادت بنائیں. اچھے اچھے کام کرنے کی عادت بنائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بچوں سے باتیں بھی ہو رہی ہیں. اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے فیضان صحابہ. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد ایوب اتاری اور میں ہوں محمد زین اتاری. آج ہم آپ کو بتائیں گے ایسے صحابی کے بارے میں جو چھوٹی عمر میں صحابی بنے. ہجرت کے بعد انصار صحابہ کی ہاں سب سے پہلے جن کی ولادت ہوئی وہ آپ رضی اللہ عنہ ہی ہیں. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، تو بات ہو رہی ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی. آپ رضی اللہ عنہ سن 2 ہجری میں مدینہ پاک میں پیدا ہوئے. ولادت کے بعد آپ کی امی جان آپ کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو گٹی دی اور یہ خوشخبری سنائی، یہ بچہ قابل تعریف زندگی گزارے گا، شہید ہوگا اور جنت میں داخل ہوگا. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 2 خوشے عطا کیے اور اشارہ کر کے فرمایا، اسے ایک تم کھا لینا اور دوسرا اپنی والدہ کو دے دینا. مگر دونوں خوشے انہوں نے کھا لیے. بعد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ سے خوشوں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے عرض کی وہ میں نے کھا لیے. یہ سن کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت سے آپ کو کان سے پکڑ لیا. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے وقت آپ کی عمر
8 साल 7 महीने थी। आप रदियल्लाहु अन्हु ने सन 64 हिजरी के आखिर में या 65 हिजरी के शुरू में शाम के शहर हिम्स में शहादत पाई। अल्लाह करीम की हज़रत नुमान बिन बशीर रदियल्लाहु अन्हु पर रहमत हो और आपके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो, आमीन। ये प्यारे बच्चों, ये आपने पैकेज देखा। अब बढ़ेंगे एक और सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है शान रमज़ान। बच्चों का रमज़ान, रमज़ान बच्चों का रमज़ान। जी प्यारे बच्चों, आज शान रमज़ान में हम एक जन्नती साहबी हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु से मुतालिक एक दिलचस्प वाक़या सुनेंगे। एक बार हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु ने एक ज़मीन 7 लाख दिरहम यानी चांदी के सिक्कों में बेची। कितने की बेची ज़मीन? 7 लाख दिरहम। अब दिरहम किसको कहते हैं? दिरहम आपने बहुत मरतबा सुना होगा। ये कहते हैं चांदी के सिक्के। चांदी के सिक्के। ये दिरहम जब भी सुनेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? चांदी के सिक्के। फिर एक होता है दीनार, ये होते हैं सोने के सिक्के। या में पहले ये चीज़ें चलती थी। तो आप रदी अल्लाह उन्होंने जब ये ज़मीन बेची तो परेशान और बेचैन हो गए कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी ने हज़रत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु को परेशान देखा तो परेशानी की वजह पूछी, जिस पर हज़रत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया, मुझे ये परेशानी है जिस बंदे की रातें अल्लाह पाक की इबादत में गुजरती हों और उसके घर में इतना माल मौजूद हो, यानी आपके पास ज़्यादा माल आ गया तो आप क्या हो गए? परेशान हो गए कि वो ज़मीन इतनी महंगी चली गई 7 लाख दिरहम की, अब मेरे पास इतने सारे पैसे आ गए और ये पैसे घर में रखे हुए हैं, अब क्या करें? तो अल्लाह पाक की बारगाह में हिसाब किताब के लिए कैसे हाजिर होऊंगा, इस वजह से आप परेशान थे। तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी ने अर्ज़ की, इसमें परेशानी की क्या बात है? आप अपने गरीब दोस्तों को क्यों भूल रहे हैं? सुबह होते ही उन्हें बुलाएं और सारा माल बांट दें। तो ये बात सुनकर आप खुश हो गए और अभी अल्लाह पाक की इबादत में रात गुजारें, आपकी ज़ौजा ने कहा। ये सुनकर आप रदी अल्लाह ताला का दिल बहुत खुश हुआ और आप रदी अल्लाह ताला अपनी बीवी से कहा, आप वाकई नेक बाप की बेटी हैं। प्यारे बच्चों, हज़रत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो ज़ौजा हैं उनका नाम है हज़रत उम्मे कुलसूम। क्या नाम है? हज़रत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह अन्हा। और हज़रत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह अन्हा के वालिद साहब का नाम है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु। ये किन की बेटी थी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की। अब इसमें मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ़ वाले भी जुमले थे कि आप नेक बाप की बेटी हैं। अगले दिन सुबह होते ही हज़रत अबू तलहा बिन उबैदुल्लाह रदी अल्लाह अन्हु ने सारा माल बांटना शुरू कर दिया और इसमें से कुछ हिस्सा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी भेजा और 7 लाख दिरहम यानी चांदी के सिक्कों में से घर वालों के लिए सिर्फ 1000 दिरहम रख लिए। प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो मैंने आज आपको किस्सा सुनाया इससे मालूम हुआ हज़रत अबू तलहा रदी अल्लाह अन्हु गरीबों का बहुत ख्याल रखते थे, गरीबों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। और जब आपके पास ज़्यादा माल आ गया तो आप परेशान हो गए कि इसका हिसाब किताब भी होगा। तो ये है कि अभी से जो है सखावत का जहन होना चाहिए, बांटने का जहन होना चाहिए। ठीक है, अम्मी अब्बू से बोलें, अम्मी कुछ दे दें, ये गरीब मैंने देखा आज, इसको कुछ दे दें, कोई किसी को कपड़ा दे दें, किसी को सूट दे दें, ईद करीब आ रही है, अम्मी मेरा एक दोस्त गरीब है, अगर हम उनको कुछ दे दें। ठीक है, लेकिन पूछ के करना है, ये आपके पैसे तो हैं नहीं, अम्मी के पैसे हैं, अब्बू के पैसे हैं, आप अपनी तरफ से नहीं दे सकते छोटे बच्चे। तो अभी से बाद बच्चे आपने देखा होगा माशाल्लाह वो क्लास में भी कुछ ना कुछ बांटते हैं, उनकी अम्मी अब्बू बदले ये बेटा दे देना। अब कोई गरीब दिख रहा है तो अगर अभी से ये नरम दिली वाला जहन होगा, मस्जिद में देने का शौक़ हो, मस्जिद में देंगे, राय खुदा में देंगे, तो माल देने का शौक़ हो, माल देने का शौक हो, अपनी पसंदीदा चीज़, ये है मुश्किल बच्चों के लिए, बल्कि तो छीन लेते हैं, लड़ाई कर रहे होते हैं। अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह ताला की राह में देने का शौक़ हो, ये शौक़ भी पैदा करें कि भाई दे दें, ये गरीब हैं, दो सूट हैं, इसके बाद एक सूट भी नहीं, एक सूट दे दें। ठीक है, अब ये करना सारे अम्मी अब्बू के मशवरे से है, क्योंकि ये उनकी मिल्क हैं, उन्होंने भी आपको दिया है ना, आप तो खुद ख़रीद के नहीं लाए। ठीक है, तो जो चीज़ घर वालों से पूछ के ही आपने देनी है, जो भी चीज़ दें घर वालों से पूछ कर ही देनी है। तो ये भी मोहब्बत होनी चाहिए, रहम दिली होनी चाहिए। अभी ईद आ रही है तो अम्मी उनके भी सूट बनाते हैं, उनके भी सूट बनाए, आप खुद मशवरे दें अपनी अम्मी को, अब्बू को। अम्मी बोलेंगी कि ये बच्चा जो है ना माशाल्लाह इसमें बांटने का जहन है। बाद बच्चे होते हैं नमाज़ पढ़ने के बहुत शौकीन होते हैं, बाद बच्चे इबादत करने के बड़े शौकीन होते हैं, बाद बच्चे लेटे रहते हैं, सोते रहते हैं,
घुमवा लो, खाना पीना खिलाओ। बाद बच्चे अच्छे बच्चे नहीं होते, बाद बच्चे अच्छे अच्छे काम कर रहे होते हैं, तो हमें अच्छे अच्छे काम करना ही चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब बढ़ेंगे एक और सेगमेंट की जानिब। सेगमेंट का नाम है स्क्रीन सवालात। बच्चों का रमजान, रमजान बच्चों का रमजान। अच्छा, इस बार आपको स्क्रीन पर कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। अब पहला सवाल ये है, जन्नत में जब जन्नती जाएंगे तो सबसे पहले उनको खाने में जो है कलेजी दी जाएगी। अब वो कलेजी किस जानवर की है आपने ये बताना है, मछली की, बकरे की या फिर दुम्बे की। ये देखें आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ए बी सी। जी हाँ, मछली की कलेजी का किनारा सबसे पहले खाने को दिया जाएगा जब जन्नती जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह। कितनी उंगलियों से खाना सुन्नत है? कितनी उंगलियों से खाना सुन्नत अंबिया अलैहिमुस्सलाम है? ऑप्शन ए में 4 उंगलियां, ऑप्शन बी में 2 उंगलियों से खाना सुन्नत है, या ऑप्शन सी में 3 उंगलियों से खाना सुन्नत है? ऑप्शन सी। जी हाँ, 3 उंगलियों से खाना सुन्नत अंबिया अलैहिमुस्सलाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इनमें से कौन से रंग का लिबास पहना करते थे? ऑप्शन है आपके पास ए बी सी, लाल, सब्ज, सफ़ेद। जी सफ़ेद जवाब दुरुस्त है। जी, ये आपको मज़ारत की पिक्चरें दिखाई जा रही हैं। आपने बताया इनमें से वो कौन से बुज़ुर्ग हैं जिनका मज़ार लाहौर में है? ये हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी, हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह, हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी। जवाब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पर कोशिश है कि बच्चों को एक्टिविटी अंदाज में, सवाल जवाब वाले अंदाज में बच्चों को सिखाते रहें। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ इख्तिताम, जिसका नाम है बच्चों का रमज़ान। रमजान बच्चों का रमजान, एक्टिविटी है सवालात भी, बच्चों के प्यारे जवाबात भी, सेगमेंट्स हैं प्यारे प्यारे, इसमें रमजान की क्या शान, बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान, रमजान बच्चों का रमजान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया।